نمبر 6، خلافت۔ انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کی روح سے صرف یہ ہے کہ ریاست خدا اور رسول کی قانونی بالادستی تسلیم کر کے اس کے حق میں حاکمیت سے دستبردار ہو جائے اور حاکم حقیقی کے تحت خلافت یعنی نیابت کی حیثیت قبول کرے۔ اس حیثیت میں اس کے اختیارات خواہ وہ تشریعی ہوں یا عدالتی یا انتظامی، لازماً ان حدود سے محدود ہوں گے جو اوپر پیراگراف 3، 4 اور 5 میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی اور نگہبان ہے ان پر۔ پس جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں اس حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے پاس آیا ہے۔ سورہ سعد آیت نمبر 26۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا لے جائے۔ نمبر 7، خلافت کی حقیقت۔ اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کو جو قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہیں۔ خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے۔ اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 10۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کی۔ سورہ حج آیت نمبر 65۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو زمین میں ہے؟ ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ اے قوم عاد، یاد کرو جبکہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74۔ اور اے قوم سمود، یاد کرو جبکہ تمہیں اس نے عاد کے بعد خلیفہ بنایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 129۔ اے بنی اسرائیل، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن یعنی فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 14۔ پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لیکن یہ خلافت، صحیح اور جائز خلافت، صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ مالک حقیقی کے حکم کی تابع ہو۔ اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کے بجائے بغاوت بن جاتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 39۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر وبال ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے ہاں کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر اس کے غضب میں، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کوئی چیز نہیں بڑھاتا مگر خسارہ۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 آیت نمبر 11۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ اور سمود کے ساتھ، جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، اور میخوں ڈالے فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملک میں سرکشی کی۔ سورہ النازعات آیت نمبر 17 آیت نمبر 24۔ اے موسیٰ، جا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب برتر میں ہوں۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نمبر 8، اجتماعی خلافت۔ اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جماعت یعنی کمیونٹی اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت 55 کے الفاظ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اس معاملے میں صریح ہیں۔
इस फिक्रे की रूह से अहले ईमान की जमात का हर फर्द खिलाफत में बराबर का हिस्सेदार है। किसी शख्स या तबके को आम मोमिनीन के इख्तियारात खिलाफत सलब करके उन्हें अपने अंदर मरकूज कर लेने का हक नहीं है। ना कोई शख्स या तबका अपने हक में खुदा की खुसूसी खिलाफत का दावा कर सकता है। यही चीज इस्लामी खिलाफत को मलूकियत, तबकाती हुकूमत, मजहबी पेशवाओं की हुकूमत से अलग करके उसे जमहूरियत के रुख पर मोड़ती है। लेकिन इसमें और मगरबी तसव्वुर जमहूरियत में उसूली फर्क यह है कि मगरबी तसव्वुर की जमहूरियत अवामी हाकमियत यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी के उसूल पर कायम होती है, और इसके बरक्स इस्लाम की जमहूरी खिलाफत में खुद अवाम खुदा की हाकमियत तस्लीम करके अपने इख्तियारात को बरज़ा और रग़बत कानून खुदाबंदी के हुदूद में महदूद कर लेते हैं। नंबर 9, रियासत की अताअत के हुदूद। इस निज़ाम खिलाफत को चलाने के लिए जो रियासत कायम होगी, अवाम उसके सिर्फ अताअत फिल मारूफ के पाबंद होंगे। मासियत यानी कानून की खिलाफ वर्जी में ना कोई अताअत है और न तावन। आयत नंबर 12, ऐ नबी, जब ईमान लाने वाली औरतें तुम्हारे पास उन बातों पर बैत करने के लिए आएं कि वो अल्लाह के साथ शिर्क ना करेंगी और किसी जायज हुक्म में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी, तो उनकी बैत कबूल कर लो। सूरह माइदा आयत नंबर 2, नेकी और परहेजगारी में ताउन करो और गुनाह और ज्यादती में ताउन ना करो और अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। सूरह अल-दहर आयत नंबर 24, उनमें से किसी गुनाहगार और नाशुक्रे की अताअत ना करो। नंबर 10, शूरा। इस रियासत का पूरा काम इसकी तासीस और तश्कील से लेकर रईस मुमलिकत और उलुल अम्र के इंतखाब और तशरीह और इंतजामी मामलात तक अहले ईमान के बाहमी मशवरे से चलना चाहिए, कतई नजर इससे कि यह मशावरत बिला वास्ता हो या मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से। सूरह शूरा आयत नंबर 38, और मुसलमानों का काम आपस के मशवरे से चलता है। सफ़ा 39। नंबर 11, उलुल अम्र की सिफात। इस रियासत का निजाम चलाने के लिए उलुल अम्र के इंतखाब में जिन उमूर को मलहूज रखना चाहिए वो ये हैं। अलिफ, वो उन उसूलों को मानते हों जिनके मुताबिक खिलाफत का निजाम चलाने की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की जा रही है, इसलिए कि एक निजाम को चलाने की जिम्मेदारी उसके उसूली मुखालिफिन पर नहीं डाली जा सकती। सूरह निसा आयत 59, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से उलुल अम्र हो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 118, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सिवा दूसरों को शरीक राज न बना लो। सूरह तौबा आयत नंबर 16, क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने जिहाद किया और अल्लाह और रसूल और अहले ईमान के सिवा किसी को अपने मामलात में दखील नहीं बनाया। हाशिया नंबर 1, असल में लफ्ज बितानतुन इस्तेमाल हुआ है। अलजुम खशरी ने इसकी तशरीह यूं की है, एक शख्स का बताना और वलीजा वो है जो उसका मखसूस दोस्त और चीदा साथी हो, जिस पर एतमाद करके वो अपने अहम मामलात में उसकी तरफ रुजू करता हो। हाशिया नंबर 2, असल में लफ्ज वलीजतुन इस्तेमाल हुआ है, जिसकी एक तशरीह ऊपर अलजम खशरी के हवाले से गुजर चुकी है। दूसरी तशरीह अल रागिबुल इस्फहानी ने की है कि वलीजा हर वो शख्स है जिसको इंसान अपना मोतमिद बनाए, जबकि वो उसके अपने लोगों में से ना हो। ये अरब के उस मुहावरे से माखूज है कि फलाना वलीजतुन फिल कौम, यानी फला शख्स उस कौम में घुसा हुआ है, दरा हाल ये कि वो उनमें से नहीं है। बे, ये कि वो जालिम, फासिक व फाजिर, खुदा से गाफिल और हद से गुजर जाने वाले ना हों, बल्कि ईमानदार, खुदा तर्ज और नेकोकार हों। कोई जालिम या फासिक अगर इमारत या इमामत के मनसब पर काबिज हो जाए तो उसकी इमारत इस्लाम की निगाह में बातिल है। सूरह बकरा आयत नंबर 124, और याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और उसने वो पूरी कर दी, तो रब ने फरमाया, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। इब्राहीम ने कहा, और मेरी औलाद में से भी। फरमाया, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। हाशिया, मशहूर हनफी फकीह
अबू बकर अल जसास इस आयत की तशरीह करते हुए पहले ये बताते हैं कि अगरचे लुगत में इमाम से मुराद हर वो शख्स है जिसकी पैरवी की जाए, ख्वाह हक में हो या बातिल में, लेकिन इस आयत में इमाम से मुराद सिर्फ वो शख्स है जो इत्तबा का मुस्तहिक हो और जिसकी पैरवी लाजिम हो। लिहाजा इस एतबार से इमामत के आला मर्तबे पर अंबिया हैं, फिर रास्त रो खुलफा, फिर सौलेह उलमा और काजी। इसके बाद वो लिखते हैं, बस कोई जालिम ना तो नबी हो सकता है और ना ये जायज है कि वो नबी का खलीफा या काजी या ऐसा ओहदेदार हो जिसकी बात का मानना उमूर दीन में लाजिम हो। इस आयत की दलालत से साबित होता है कि फासिक की इमामत बातिल है और वो खलीफा नहीं हो सकता, और अगर वो अपने आप को इस मनसब पर मुसल्लत कर दे तो लोगों पर उसका इत्तबा और उसकी अताअत लाजिम नहीं है। सूरह स्वात आयत नंबर 28। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उन लोगों की तरह कर दें जो जमीन में फसाद करते हैं? क्या हम परहेजगारों को फाजरों की तरह कर दें? सूरह कहफ आयत नंबर 28 सफा। और तू अताअत न कर किसी ऐसे शख्स की जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार की है और जिसका काम हद से गुजरा हुआ है। सूरह शोरा आयत नंबर 151 और आयत नंबर 152। और अताअत न कर उन हद से गुजर जाने वालों की जो जमीन में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते। सूरह हुजरात आयत नंबर 13। तुम में सबसे ज्यादा मोअज़्ज़िज़ अल्लाह के नजदीक वो हैं जो ज्यादा परहेजगार हैं। जीम, वो नादान और जाहिल ना हो बल्कि ज़ी इल्म, दाना और मामला फहम हो और कारोबार खिलाफत को चलाने के लिए काफी ज़हनी और जिस्मानी अहलियत रखते हों। सूरह निसा आयत नंबर 5। अपने अम्वाल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिए क़याम बनाया है नादान लोगों के हवाले ना करो। सूरह बकरा आयत नंबर 247। बनी इसराइल ने कहा, उसको यानी तालूत को हम पर हुकूमत का हक कहां से हासिल हो गया, हालांकि हम उसकी बनिस्बत बादशाही के ज्यादा हकदार हैं और उसे माल में कोई कुशादगी नहीं दी गई है। नबी ने कहा, अल्लाह ने उसे तुम्हारे मुकाबले में बरगजीदा किया है और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी दी है। सूरह स्वात आयत नंबर 20। और दाऊद की बादशाही को हमने मजबूत किया और उसे हिकमत और फैसला कुन बात करने की सलाहियत दी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 55। यूसुफ ने कहा कि मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दे, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूं। सूरह निसा आयत नंबर 83। और अगर ये लोग अफवाहें उड़ाने के बजाय इस खबर को रसूल तक और उन लोगों तक पहुंचाते जो उनमें से उलुल अम्र हैं, तो वो ऐसे लोगों के इल्म में आ जाती जो उनके दरमियान बात की तह तक पहुंच जाते हैं। सूरह अल-ज़ुमर आयत नंबर 9। कहो, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं? दाल, वो ऐसे अमानतदार हों कि जिम्मेदारियों का बोझ उन पर एतमाद के साथ रखा जा सके। सूरह निसा आयत नंबर 58। अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के हवाले करो। हाशिया, इसमें यह मफहूम शामिल है कि जिम्मेदारियों के मनासिब उन लोगों के हवाले किए जाएं जो उनके मुस्तहिक हों। नंबर 12, दस्तूर के बुनियादी उसूल। इस रियासत का दस्तूर जिन बुनियादी उसूलों पर कायम होगा वो ये हैं। अलिफ, सूरह निसा आयत नंबर 59। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से उलुल अम्र हो। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो, अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो। ये आयत 6 दस्तूरी नुकात वाज़े करती है। नंबर 1, अल्लाह और रसूल की अताअत का हर अताअत पर मुकद्दम होना। नंबर 2, उलुल अम्र की अताअत का अल्लाह और रसूल की अताअत के तहत होना। नंबर 3, ये कि उलुल अम्र अहले ईमान में से हों। नंबर 4, ये कि लोगों को हुक्काम और हुकूमत से नज़ा का हक है। नंबर 5, ये कि नज़ा की सूरत में आखिरी फैसला कुन सनद खुदा और रसूल का कानून है। नंबर 6, ये कि निज़ाम खिलाफत में एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो उलुल अम्र और अवाम के दबाव से आजाद रहकर
इस बालातर कानून के मुताबिक जुमला नज़ात का फैसला दे सके। बे, मुंतज़िमा यानी एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात लाज़मन हुदूदुल्लाह से महदूद और खुदा और रसूल के कानून से महसूर होंगे, जिससे तजावुज़ करके वो ना कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर सकती है, ना कोई ऐसा हुक्म दे सकती है जो मासियत की तारीफ में आता हो, क्योंकि इस आईनी दायरे से बाहर जाकर उसे अताअत के मुतालबे का हक ही नहीं पहुंचता। इसके मुताल्लिक कुरान के वाज़े अहकाम हम ऊपर पैराग्राफ नंबर 3, 5 और 9 में नकल कर चुके हैं। इलावा बरी ये मुंतज़िमा लाज़मन शूरा यानी इंतखाब के जरिए से वजूद में आनी चाहिए और इसे शूरा यानी बाहमी मशावरत ही के साथ काम करना चाहिए, जैसा कि पैराग्राफ नंबर 10 में बयान किया जा चुका है। लेकिन इंतखाब और मशावरत दोनों के मुताल्लिक कुरान कतई और मुतय्यन सूरतें मुकर्रर नहीं करता, बल्कि एक वसी उसूल कायम करके उस पर अमल दरामद की सूरतों को मुख्तलिफ ज़मानों में माशरे के हालात और ज़रूरियात के मुताबिक तय करने के लिए खुला छोड़ देता है। जीम, मुक़न्नना यानी लेजिस्लेचर लाज़मन एक शूरवी हैयत यानी कंसल्टेटिव बॉडी होनी चाहिए, मुलाहिज़ा हो पैराग्राफ नंबर 10। लेकिन उसके इख्तियारात कानून साजी बहरहाल उन हुदूद से महदूद होंगे जो पैराग्राफ नंबर 3 और 5 में बयान किए हैं। जहां तक उन उमूर का ताल्लुक है जिनमें खुदा और रसूल ने वाज़े अहकाम दिए हैं या हुदूद और उसूल मुकर्रर किए हैं, ये मुक़न्नना उनकी ताबीर व तशरीह कर सकती है, उन पर अमल दरामद के लिए ज़िमनी क़वाइद और ज़ाब्ता कार्रवाई तजवीज़ कर सकती है, मगर उनमें रद्द बदल नहीं कर सकती। रहे वो उमूर जिनके लिए बालातर कानून साज ने कोई कतई अहकाम नहीं दिए हैं, ना हुदूद और उसूल मुतय्यन किए हैं, उनमें इस्लाम के स्पिरिट और उसके उसूल आम्मा के मुताबिक मुक़न्नना हर ज़रूरत के लिए कानून साजी कर सकती है, क्योंकि उनके बारे में कोई हुक्म ना होना ही इस बात की दलील है कि शारे ने उनको अहले ईमान की सवाबदीद पर छोड़ दिया है। दाल, अदलिया यानी जुडिशरी हर तरह की मदाखलत और दबाव से आज़ाद होनी चाहिए, ताकि वो अवाम और हुक्काम सब के मुकाबले में कानून के मुताबिक बेलाग फैसला दे सके। उसे लाजमन उन हुदूद का पाबंद रहना होगा जो पैराग्राफ नंबर 3 और 5 में बयान हुए हैं, और उसका फर्ज होगा कि अपनी और दूसरों की ख्वाहिशात से मुतासिर हुए बगैर ठीक ठीक हक और इंसाफ के मुताबिक मामलात के फैसले करे। सूरह माइदा आयत नंबर 48, उनके दरमियान अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला कर और तू उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न कर। सूरह स्वात आयत नंबर 58, और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना कर कि वो खुदा के रास्ते से तुझे भटका ले जाए। सूरह निसा आयत नंबर 58, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। नंबर 13, रियासत का मकसद। इस रियासत को 2 बड़े मकासद के लिए काम करना चाहिए। अव्वल ये कि इंसानी जिंदगी में अदल कायम हो और जुल्म व जोर खत्म हो जाए। सूरह अल हदीद आयत नंबर 25, हमने अपने रसूलों को वाज़े हिदायत के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो, और हमने लोहा नाजिल किया जिसमें सख्त कुव्वत और लोगों के लिए मुनाफा है। हाशिया नंबर 1, मीज़ान से मुराद अदल है, जैसा कि मुजाहिद और कतादा वगैरह मुफस्सरीन ने कहा है। हाशिया नंबर 2, लोहे से मुराद सियासी कुव्वत है। इससे इशारा इस तरफ है कि अगर लोग तमर्रुद इख्तियार करें तो उनके खिलाफ तलवार की ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरे ये कि हुकूमत की ताकत और वसाइल से इकामत सलात और ईताए ज़कात का निज़ाम कायम किया जाए, जो इस्लामी जिंदगी का सुतून है। भलाई और नेकी को तरक्की दी जाए, जो दुनिया में इस्लाम के आने का असल मकसूद है, और बुराई को दबाया जाए, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा मबगूज़ है। सूरह हज आयत नंबर 41, ये वो लोग हैं कि अगर हम उन्हें जमीन में इख्तिदार दें तो ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बदी से रोकेंगे। नंबर 14, बुनियादी हुकूक। इस निज़ाम में रहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम बाशिंदों के बुनियादी हुकूक ये हैं जिन्हें तादी से महफूज रखना रियासत का फर्ज है। हाशिया, बुनियादी हुकूक के मुतालिक मजीद बहस के लिए मुलाहिज़ा हो तफहीमात जिल्द सोयम, मजमून इंसान के बुनियादी हुकूक, सफ़ा 248 ता सफ़ा 268, मतबुआ इस्लामिक पब्लिकेशंस लिमिटेड, लाहौर। अलिफ, जान का तहफ़्फ़ुज़। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 33,
किसी जान को जिसे अल्लाह ने हराम किया है हक के बगैर कत्ल ना करो। बे, हुकूक़े मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़। सूरह बकरा आयत नंबर 188 और सूरह निसा आयत नंबर 29। अपने माल आपस में नाजायज तरीकों से न खाओ। जीम, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़। सूरह हुजरात आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12। कोई ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना उड़ाए और ना तुम एक दूसरे को ऐब लगाओ, ना एक दूसरे को बुरे लक़ब दो, ना तुम में से कोई किसी के पीठ पीछे उसकी बदी करे। दाल, निजी जिंदगी यानी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़। सूरह नूर आयत नंबर 27। अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हो जब तक कि इजाजत न ले लो। सूरह हुजरात आयत नंबर 12। और लोगों के भेद ना टटोलो। हे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हक। सूरह निसा आयत नंबर 148। अल्लाह बुराई पर जबान खोलना पसंद नहीं करता इल्ला ये कि किसी पर जुल्म हुआ हो। वाओ, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हक जिसमें तनकीद की आजादी का हक भी शामिल है। सूरह मायदा आयत नंबर 78 और आयत नंबर 79। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जबान से लानत की गई। ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो ज्यादतियां करते थे। वो एक दूसरे को बुरे कामों के इर्तिकाब से रोकते न थे। बहुत बुरी बात थी जो वो करते थे। सूरह आराफ आयत नंबर 165। हमने अजाब से बचा लिया उन लोगों को जो बुराई से रोकते थे और पकड़ लिया जालिमों को अजाब सख्त में उस फिस्क के बदले जो वो करते थे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे निकाला गया है लोगों के लिए। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। जे, आजादी इज्तिमा यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का हक, बशर्ते कि वो नेकी और भलाई के लिए इस्तेमाल हो और माशरे में तफर्रक़े और बुनियादी इख्तलाफात बर्पा करने का जरिया न बनाया जाए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 104 और आयत नंबर 105। और होना चाहिए तुम में से एक ऐसा गिरोह जो दावत दे भलाई की तरफ और हुक्म दे नेकी का और रोके बदी से। ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। और ना हो जाओ उन लोगों की तरह जो मुतफर्रिक हो गए और जिन्होंने इख्तलाफ किया जबकि उनके पास वाज़े हिदायत आ चुकी थी। ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब है। ज़मीर व एतक़ाद की आज़ादी का हक। सूरह बकरा आयत नंबर 256। दीन में जबर नहीं है। सूरह यूनुस आयत नंबर 99। क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि वो मोमिन हो जाएं? सूरह बकरा आयत नंबर 191। फितना कत्ल से शदीद तर चीज है। हाशिया, फितने से मुराद है किसी शख्स पर तशद्दुद करके उसे अपना दीन बदलने पर मजबूर करना। तोएं, मजहबी दिल आजारी से तहफ़्फ़ुज़ का हक। सूरह अनाम आयत नंबर 108। ये लोग खुदा को छोड़कर जिन माबूदों को पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो। इस मामले में कुरान ये सराहत करता है कि मजहबी इख्तलाफात में इल्मी बहस तो की जा सकती है मगर वो एहसन तरीके से होनी चाहिए। सूरह अनकबूत आयत नंबर 46। अहले किताब के साथ बहस ना करो मगर एहसन तरीके से। ये हक के हर शख्स सिर्फ अपने आमाल का जिम्मेदार हो और दूसरों के आमाल की जिम्मेदारी में उसे ना पकड़ा जाए। सूरह अनाम आयत नंबर 164। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 15। सूरह फातिर आयत नंबर 18। सूरह जुमर आयत नंबर 7 और सूरह नजम आयत नंबर 38। हर मुतनफ़िस जो बुराई कमाता है उसका वबाल उसी पर है और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाता। हाशिया, यानी हर कसूरवार आदमी जिस कसूर का भी इर्तिकाब करता है उसका वो खुद जिम्मेदार है। उसके सिवा कोई दूसरा माखूज ना होगा और किसी शख्स पर उसके अपने कसूर के सिवा दूसरे के कसूर की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। काफ, ये हक के किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई सबूत के बगैर और इंसाफ के मारूफ तकाजे पूरे किए बगैर न की जाए। सूरह हुजरात आयत नंबर 6। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लो। ऐसा ना हो
कि तुम किसी ग्रोह को बेजाने बूझे नुकसान पहुंचा दो और फिर अपने किए पर पछताओ। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36। किसी ऐसी बात के पीछे ना लग जाओ जिसका तुम्हें इल्म ना हो। सूरह निसा आयत नंबर 58। और जब लोगों के मामलात में फैसला करो तो अदल के साथ करो। लाम, ये हक कि हाजतमंद और महरूम अफराद को उनकी नागुज़ीर जरूरियात जिंदगी फराहम की जाए। सूरह जारियात आयत नंबर 19। और उनके मालों में हक है मदद मांगने वाले का और महरूम का है ये हक कि रियासत अपनी रियाया में तफरीक और इम्तियाज ना करे बल्कि सबके साथ यकसां बर्ताव करे। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 4। फिरौन ने जमीन में सर उठाया और उसके बाशिंदों को ग्रोहों में तकसीम किया, जिनमें से एक ग्रोह को वो कमजोर बना रखता था। यकीनन वो मुफसिद लोगों में से था। नंबर 15। बाशिंदों पर हुकूमत के हुकूक। इस निजाम में बाशिंदों पर हुकूमत के हुकूक ये हैं। अलिफ, ये कि वो उसकी अताअत करें। सूरह निसा आयत नंबर 59। अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अम्र हों। बे, ये कि वो कानून के पाबंद हों और नज्म में खलल न डालें। सूरह आराफ आयत नंबर 85। जमीन में फसाद ना करो उसकी इस्लाह हो जाने के बाद। सूरह माइदा आयत नंबर 33। जो लोग अल्लाह और रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनकी सजा ये है कि कत्ल किए जाएं या सलीब दिए जाएं। हाशिया, फुक़हा का तकरीबन इस पर इत्तफाक है कि इससे मुराद दरअसल वो लोग हैं जो रहजनी और डाकाजनी या मुसल्लह होकर मुल्क में बदअमनी फैलाएं। जीम, ये कि वो उसके तमाम भले कामों में ताउन करें। सूरह माइदा आयत नंबर 2। नेकी और परहेजगारी में ताउन करो। दाल, ये कि वो दिफा के काम में जान और माल से उसकी मदद करें। सूरह तौबा आयत नंबर 38 ता आयत नंबर 41। तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमको खुदा की राह में निकलने के लिए कहा जाता है तो तुम जमीन पर जमकर बैठ जाते हो। अगर तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह कोई दूसरी कौम ले आएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। निकलो, खा तुम हल्के हो या भारी, और जहाद करो अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। नंबर 16। खारजी सियासत के उसूल। इस्लामी रियासत की खारजी पॉलिसी के मुतालिक जो अहम हिदायत कुरान में दी गई हैं वो ये हैं। अलिफ, अहद पैमान का एहतराम, और अगर मुआहिदा खत्म करना नागुज़ीर हो तो उससे दूसरे फरीक को खबरदार कर देना। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 24। अहद वफा करो, यकीनन अहद के मुतालिक बाज पुरस होगी। सूरह नहल आयत नंबर 91 और आयत नंबर 92। अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम मुआहिदा करो और कस्में पुख्ता कर लेने के बाद उनको ना तोड़ो और ना हो जाओ उस औरत की तरह जिसने अपना ही मेहनत से काता हुआ सूत टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को अपने दरमियान मकरो फरेब का जरिया बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से ज्यादा फायदा हासिल करे। अल्लाह इस चीज के जरिए से तुमको आजमाइश में डालता है और जरूर वो कयामत के रोज तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत खोल देगा। सूरह तौबा आयत नंबर 7। जब तक दूसरे फरीक के लोग तुम्हारे साथ अहद पर कायम रहें, तुम भी कायम रहो। यकीनन अल्लाह परहेजगारों को पसंद करता है। सूरह तौबा आयत नंबर 4। मुशरिकीन में से जिन लोगों के साथ तुमने मुआहिदा किया फिर उन्होंने तुम्हारे साथ वफा करने में कोई कमी न की और न तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो उनके अहद को मुआहिदे की मुद्दत तक पूरा करो। सूरह अनफाल आयत नंबर 72। और अगर दुश्मन के इलाके में रहने वाले मुसलमान तुमसे मदद मांगें तो मदद करना तुम्हारा फर्ज है, मगर ये मदद किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं दी जा सकती जिससे तुम्हारा मुआहिदा हो। सूरह अनफाल आयत नंबर 58। और अगर तुम्हें किसी कौम से खयानत यानी बदअहदी का अंदेशा हो जाए तो उनकी तरफ फेंक दो उनका अहद बराबरी मलहूज रखकर। यकीनन अल्लाह खाइनों को पसंद नहीं करता। हाशिया, यानी तुम्हारे और उनके दरमियान जो मुआहिदा या सुलहनामा हुआ था उसके फस्ख हो जाने की इत्तला उन्हें दे दो ताकि फरीकैन उसके फस्ख होने के इल्म में बराबर हो जाएं। और अगर तुम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो तो फरीक सानी इस ख्याल में न रहे कि तुमने उनसे बदअहदी की है। बे, मामलात में दयानत और रास्तबाजी।
सूरह नहल आयत नंबर 94। और अपनी कस्मों को अपने दरमियान मकरो फरेब का जरिया न बनाओ। हाशिया, यानी धोखा देने की नीयत से मुआहदा न करो कि फरीक़े सानी तो तुम्हारी कस्मों की बिना पर तुम्हारी तरफ से मुतमईन हो जाए और तुम्हारा इरादा ये हो कि मौका पाकर उससे गदर करोगे। जीम, बैनल अक़वामी अदल, सूरह मायदा आयत नंबर 8। और अगर किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तइल न कर दे कि तुम इंसाफ ना करो, इंसाफ करो कि यही खुदा तरसी से ज्यादा मुनासबत रखता है। दाल, जंग में गैर जानिबदार मुमालिक के हुदूद का एहतराम, सूरह निसा आयत नंबर 89 और आयत नंबर 90। और अगर वो यानी दुश्मनों से मिले हुए मुनाफिक मुसलमान ना माने तो उनको पकड़ो और कत्ल करो जहां पाओ, सिवाय उन लोगों के जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा हो। हे सुलह पसंदी, सूरह अनफाल आयत नंबर 61। और अगर वो सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी माइल हो जाओ। वाव, फसाद फिल अर्द और जमीन में अपनी बड़ाई कायम करने की कोशिशों से इज्तनाब, सूरह कसस आयत नंबर 83। वो आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस करेंगे जो जमीन में अपनी बढ़तरी नहीं चाहते और ना फसाद करना चाहते हैं। नेक अंजाम परहेजगार लोगों के लिए है। जे, गैर मुआनिद ताकतों से दोस्ताना बर्ताव, सूरह मुमतहिन्ना आयत नंबर 8। अल्लाह तुमको इस बात से नहीं रोकता कि जिन लोगों ने तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है, उनके साथ तुम नेक सुलूक और इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। हे नेक मामला करने वालों से नेक बर्ताव, सूरह रहमान आयत नंबर 60। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? तोएं ज्यादती करने वालों के साथ उतनी ही ज्यादती जितनी उन्होंने की हो, सूरह बकरा आयत नंबर 194। बस जो कोई तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी उस पर उतनी ही ज्यादती कर लो जितनी उसने की थी, और अल्लाह से डरो और जान रखो बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है, सूरह नहल आयत नंबर 126। और अगर बदला लो तो इतना ही लो जितना तुम्हें सताया गया हो, और अगर सब्र करो तो वो बेहतर है सब्र करने वालों के लिए, सूरह शूरा आयत नंबर 40 ता आयत नंबर 42। और बुराई का बदला उतनी ही बुराई है जितनी की गई हो। फिर जो माफ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अज्र अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और वो लोग काबिल गिरफ्त नहीं हैं जिन पर जुल्म किया गया हो और उसके बाद वो उसका बदला लें। काबिल गिरफ्त तो वो हैं जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक सरकशी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा है। इस्लामी रियासत की खुसूसियात। कुरान के इन 16 नुकात में जिस रियासत की तस्वीर हमारे सामने आती है उसकी नुमाया खुसूसियात ये हैं। नंबर 1, एक आजाद कौम की तरफ से ये शऊरी अहद उस रियासत को वजूद में लाता है कि वो पूरी खुद मुख्तारी की मालिक होते हुए अपनी मर्जी से खुद रब्बुल आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम कर देगी और उसके मातहत हाकमियत के बजाय खिलाफत की हैसियत कबूल करके उन हिदायत और अहकाम के मुताबिक काम करेगी जो उसने अपनी किताब और अपने रसूल के जरिए से अता किए हैं। नंबर 2, वो हाकमियत को खुदा के लिए खालिस करने की हद तक थियाक्रेसी के बुनियादी नजरिए से मुत्तफिक है, मगर इस नजरिए पर अमल दरामद करने में उसका रास्ता थियाक्रेसी से अलग हो जाता है। मजहबी पेशवाओं के किसी खास तबके को खुदा की खुसूसी खिलाफत का हामिल ठहराने और हलो अख्त के सारे इख्तियारात उस तबके के हवाले कर देने के बजाय वो हुदूद रियासत में रहने वाले तमाम अहले ईमान को, जिन्होंने रब्बुल आलमीन के आगे सर तस्लीम खम करने का शऊरी अहद किया है, खुदा की खिलाफत का हामिल करार देती है और हलो अख्त के आखिरी इख्तियारात मजमूई तौर पर उनके हवाले करती है। नंबर 3, वो जमहूरियत के इस उसूल में डेमोक्रेसी से मुत्तफिक है कि हुकूमत का बनना और बदलना और चलाया जाना बिल्कुल अवाम की राय से होना चाहिए, लेकिन इसमें अवाम मुतलकुल अनान नहीं होते कि रियासत का कानून, उसके उसूल हयात, उसकी दाखिली और खारजी सियासत और उसके वसाइल और ज़राए सब उनकी ख्वाहिशात के ताबे हों और जिधर जिधर वो माइल हों ये सारी चीज़ें भी उसी तरफ मुड़ जाएं, बल्कि इसमें खुदा और रसूल का बालातर कानून अपने उसूल हुदूद और अखलाकी अहकाम व हिदायत से अवाम की ख्वाहिशात पर ज़ब्त कायम रखता है
اور ریاست ایک ایسے متعین راستے پر چلتی ہے جسے بدل دینے کے اختیارات نہ اس کی منتظمہ کو حاصل ہوتے ہیں، نہ عدلیہ کو، نہ مقننہ کو، نہ مجموعی طور پر پوری قوم کو، الا یہ کہ قوم خود اپنے عہد کو توڑ دینے کا فیصلہ کر کے دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ نمبر 4، وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کو چلانا فطرتاً انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی نظریے اور اصول کو تسلیم کرتے ہوں، لیکن تسلیم نہ کرنے والے جتنے لوگ بھی اس کے حدود میں تابع قانون ہو کر رہنا قبول کر لیں، انہیں وہ تمام مدنی حقوق اسی طرح دیتی ہے جس طرح تسلیم کرنے والوں کو دیتی ہے۔ نمبر 5، وہ ایک ایسی ریاست ہے جو رنگ، نسل، زبان یا جغرافیہ کی عصبیتوں کے بجائے صرف اصول کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ زمین کے ہر گوشے میں نسل انسانی کے جو افراد بھی چاہیں ان اصولوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی امتیاز و تعصب کے بغیر بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اس نظام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ان اصولوں پر کوئی حکومت قائم ہوگی وہ لازماً اسلامی حکومت ہی ہوگی، خواہ وہ افریقہ میں ہو یا امریکہ میں، یورپ میں ہو یا ایشیا میں، اور اس کے چلانے والے خواہ گورے ہوں یا کالے یا زرد۔ اس نوعیت کی خالص اصولی ریاست کے لیے ایک عالمی ریاست بن جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر زمین کے مختلف حصوں میں بہت سی ریاستیں بھی اس نوعیت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاستیں ہوں گی۔ کسی قوم پرستانہ کشمکش کے بجائے ان کے درمیان پورا برادرانہ تعاون ممکن ہوگا، اور کسی وقت بھی وہ متفق ہو کر اپنا ایک عالمگیر وفاق قائم کر سکیں گے۔ نمبر 6، سیاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اخلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی و پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ اس کے کارفرماؤں اور اہل حل و عقد کے انتخاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کے داخلی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور بے لاگ عدل و انصاف پر چلنا چاہیے، اور اس کی خارجی سیاست کو بھی پوری راست بازی، قول و قرار کی پابندی، امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے۔ نمبر 7، یہ ریاست محض پولیس کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس کا کام صرف نظم و ضبط قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو، بلکہ یہ ایک مقصدی ریاست ہے جسے ایجابی طور پر اجتماعی عدل اور بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کے استحصال کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نمبر 8، حقوق اور مرتبے اور مواقع میں مساوات، قانون کی فرمانروائی، نیکی میں تعاون اور بدی میں عدم تعاون، خدا کے سامنے ذمہ داری کا احساس، حق سے بڑھ کر فرائض کا شعور، افراد اور معاشرے اور ریاست سب کا ایک مقصد پر متفق ہونا اور معاشرے میں کسی شخص کو ناگزیر لوازم حیات سے محروم نہ رہنے دینا، یہ اس ریاست کی بنیادی قدریں ہیں۔ نمبر 9، فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام میں ایسا توازن قائم کیا گیا ہے کہ نہ ریاست مختار مطلق اور نہ ہماگیر اقتدار کی مالک بن کر فرد کو اپنا بے بس مملوک بنا سکتی ہے، اور نہ فرد بے قید آزادی پا کر خود سر اور اجتماعی مفاد کا دشمن بن سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف افراد کو بنیادی حقوق دے کر اور حکومت کو بالاتر قانون اور شورا کا پابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لیے نشوونما کے پورے مواقع فراہم کی گئے ہیں، اور اقتدار کی بے جا مداخلت سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر دوسری طرف فرد کو بھی ضابطۂ اخلاق میں کسا گیا ہے اور اس پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی حکومت کی دل سے اطاعت کرے، بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے، اس کے نظام میں خلل ڈالنے سے باز رہے اور اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہ کرے۔